Seventh Maths topic Joint bar graph. Today we are going to study how to draw a joint bar graph using a given data. Those who are not subscribed our channel, please do subscribe so that you will get all notifications. When presenting data, different kinds of graphs are used. For example, pie chart, line graph, histogram. Pie charts show how much each category represents as a proportion of the whole by using a circular format with different slices for different percentages of the whole. While bar graphs use a series of rectangular bars to show absolute values or proportions of each of the categories. A line graph, also known as a line plot or line chart, is a graph which uses lines to connect individual data points that display quantitative values over a specified time interval. Line graphs use data points markers that are connected by a straight line to aid visualization. Line graphs are used to track changes over short and long periods of time. When smaller changes exist, line graphs are better to use than bar graphs. Line graphs can also be used to compare the changes over the same period of time formed than one group. A histogram is similar to a bar graph, but the difference is clear. A bar graph has gaps between the bars, and the bars of a histogram are adjacent to each other. Bar graphs and histogram are two ways to display data graphically. In which situation is a bar graph preferred over a pie chart? Let's discuss. Pie chart can only be used if the sum of the individual parts add up to a meaningful whole and is built for visualizing how each part contributes to that whole. Meanwhile, a bar chart can be used for broader range of data types, not just for breaking down a whole into components. Observe the two bar graphs below, which show the wheat production in quintals in Ajay's and Vijay's farms. Let us see if we can show the information from both graphs in a single graph. Look at the graph below. In this way, more information can be given using less space. Besides, comparing Ajay's and Vijay's wheat production also becomes easier. Such graphs are called as a joint bar graphs. A joint bar graphs is a set of bar graphs showing different sets of information but joined to each other. In this chapter, we are going to learn how to draw a joint bar graph from a given data. The number of saplings planted by schools on World Tree Day is given in the table below. Draw a joint bar graph to show these figures. In this table, we have information regarding name of saplings, almond, neem, ashok, etc. And this table also shows school name, that is Nutan Vidyalaya and Bharat Vidyalaya. First steps for drawing a joint bar graph. First step is, on a graph paper, draw the x-axis and y-axis and their point of intersection. पहले हम x और y axis बनाएंगे. ओके हमने यहाँ पे बना लिया है x axis, y axis, point of intersection is 0. ये ड्रॉ करने के आधे मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स. ओके नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे, सैपलिंग्स, नेम ऑफ सैपलिंग्स, आलमंड, करंज, नीम, अशोक, गुलमोहर एक्सेट्रा. तो अभी ये हमें ड्रॉ करना है. तो ये कैसे करेंगे, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ जॉइंट बार्स इक्वल बॉक्स. तो आप दो बॉक्स छोड़ के एक सेल बना सकते हो, फिर दो छोड़ना पड़ेगा. नहीं तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक सेल छोड़ के ये एक सेल यूज़ करूँगी. आई यूज़ दिस सेल. ठीक है, इसमें आई शो द आलमंड,
फिर एक बॉक्स छोड़ दूँगी, फिर दूसरा सेकेंड के लिए। ओके ओके, ये सेल होगा आलमंड के लिए, एक सेल छोड़ के, एक बॉक्स छोड़ के, फिर करंज, देन नीम एक छोड़ के, एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, वाई एक्सेस के लिए हमें स्केल चूज़ करनी है। आई चूज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैपलिंग्स, मतलब ये जो एक बॉक्स है इट विल शो 10 सैपलिंग्स। नेक्स्ट दिस टाइप ऑफ बार आई विल चूज़ फॉर नूतन विद्यालय के लिए, और भारत विद्यालय के लिए लाइन्ड बार हम लोग चूज़ करेंगे। नाउ यहाँ पे हम लोग वाई एक्सेस पे स्केल लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है 10, तो दूसरा आएगा 20। ठीक है, ये कहाँ तक प्लॉट करना है, डेटा में, टैबुलर डेटा में आप देख लीजिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 72, तो हमें 80 तक तो भी एटलीस्ट जाना है। 100 तक आपने प्लॉट किया तो भी चलेगा, एटलीस्ट 80 तक हमें शो करना है। ओके, और लोएस्ट क्या है हमारी 25, राइट। तो इस हिसाब से थोड़ा स्केल एडजस्ट कर लेना। ओके, ये हो गई प्लॉट हमारी। यहाँ पे हम ये स्केल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैपलिंग लिया, इसी की जगह हम 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैपलिंग ले सकते हैं, मतलब 2 बॉक्स मिला के। ठीक है, तो फिर ये ग्राफ आपका बढ़ जाएगा, लेंथ भी बढ़ेगी। वैसे किया तो भी चलता है, चॉइस आपकी है। ठीक है, लेकिन जब 2 बार ग्राफ मिला के आप 10 ले रहे हो तो हर एक की लाइन जो आएगी ईच यूनिट, तो 2 का डिस्टेंस लेना है, 2 इसमें का। यहाँ पे कैसे है, ये 10 है तो सिंगल लाइन ही आ जाएगी आपकी। ओके, तो ये काउंटिंग के लिए इजी होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू टेबल क्या डेटा है, नूतन विद्यालय आलमंड के कितने सैपलिंग्स 40, तो वो प्लॉट करेंगे। 40 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ तक आना है हमें। ओके, नूतन विद्यालय आलमंड सैपलिंग कितने किए उन्होंने, 40। ओके, तो दूसरा अभी और एक बचा है, भारत विद्यालय ने कितने किए, 42। अब देखो यहाँ पे 40 है, 42 कहाँ पे आएगा, 40 और 50 इसके बीच में देखो 10 लाइन्स है, 10 में से 40 के ऊपर और 2 लाइन्स। ओके, छोटी वाली ये वाली, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, यहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, अच्छा इससे पहले एक चीज़ रहेगी, हमें यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी है। हमने यहाँ पे क्या शो किया है, नेम ऑफ सैपलिंग। ओके, नेम ऑफ सैपलिंग्स। वाई एक्सिस पे क्या शो किया, नंबर ऑफ सैपलिंग्स। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना। ओके, नेक्स्ट करंज के कितने हैं, नूतन विद्यालय के हैं 60 और भारत विद्यालय के 38, तो 60 कहाँ पे आएगा, नूतन विद्यालय यहाँ तक आएंगे 60 तक। ओके ओके, अभी भारत विद्यालय के कितने, 38, 38 कहाँ पे आएगा, ये देखो 30 ये है, इसके आगे 8 लाइन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रही यहाँ पे। ओके, आई ड्रॉ हियर, ये आएगा 38, यहाँ पे पॉइंट लगाओ और ज्वाइन कीजिए। 40 से 2 नीचे। ओके, नेक्स्ट इज नीम, नूतन विद्यालय 72 सैपलिंग्स एंड भारत 60। 72 कहाँ पे आएगा नीम का, देखो 70 यहाँ पे है, 70 के ऊपर 2 लाइन्स। ओके, नेक्स्ट इज भारत विद्यालय कितने हैं, 60, 60 कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अशोका, अशोका के कितने हैं, 15, नूतन विद्यालय ने 15 किए, 10 10 के आगे 5 लाइन ये रहे, तो यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे 15। भारत विद्यालय 25, 20 कहाँ पे है, यहाँ से देख लो ये 20 है, इसके आगे 5, 25। नेक्स्ट इज गुलमोहर, गुलमोहर के नूतन विद्यालय के कितने हैं, 42 सैपलिंग्स। ओके, 42 कहाँ पे आएगा, 40 देख लो कहाँ पे, ये रहा 40, 40 यहाँ पे है, इसके आगे 2। नेक्स्ट इज भारत विद्यालय के 40 है, 40 मतलब यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज द आंसर।
Next, the table below shows the number of people who had the different juices at a juice bar on Saturday and Sunday. Draw a joint bar graph for these data. First, we will draw x and y axis. Draw x and y axis and their point of intersection, that is here 0. On x axis we will plot fruit juices, sweet, lime, orange, etc. Okay, so here we will choose here one cell. Okay, after one cell we will plot here sweet, lime, then leave one cell, then plot orange and so on. Okay, now also write, हमने यहाँ पे क्या प्लॉट किया, फ्रूट जूस. ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन वाई एक्सेस स्केल, वी विल टेक स्केल नाउ. On y-axis 1 centimeter is 10 customer. Okay, then also plain bar graph Saturday शो करेगा और लाइन जिसमें जो लाइन है इस टाइप का ग्राफ ये संडे शो करेगा. ठीक है, अभी स्केल यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10. 1 मतलब 10, ये छोड़ के यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 20. अकॉर्डिंग टू डेटा हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, यस करेक्ट 78. ठीक है, तो हमें एटलीस्ट 80 तक प्लॉट करना है या फिर 100 तक. 80 तो भी चाहिए. और लोएस्ट कितनी है 30. ये हमेशा ध्यान में रखना, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू. ओके ओके, अभी ये भी लिखना ज़रूरी है. नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हमने क्या शो किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई एक्सेस पे हमने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स शो किया. अभी हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे. सैटरडे को, ओके सैटरडे को कितने हुए 43 स्वीट लाइम के. ओके ये तो 43 कैसे ड्रॉ करेंगे, 40 उसके आगे 3 यूनिट. सी 40 और 50 10 यूनिट्स है, इसके आगे 43 प्लॉट करना है तो 3 यूनिट पे हम ड्रॉ करेंगे. 43 हमने पॉइंट प्लॉट किया. नाउ वी विल ड्रॉ लाइन. दिस इज डन. नाउ नेक्स्ट इज 59. ओके, संडे को 59. 59 का कैसे आएगा, ये देखो ये आ गया 50, 50 के आगे 9, 60 को एक कम. ओके यहाँ पे 9 आएगा, 50 के आगे 9 लाइन्स, तो ये ज्वाइन कर लेंगे. नेक्स्ट इज ऑरेंज. ऑरेंज के कितने 30. 30 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे. देन ऑन संडे कितना है उसका डेटा 65. 65 कहाँ पे आएगा, ये रहा 60, इसके आगे 5 यूनिट्स ये. नेक्स्ट एप्पल. सैटरडे कितना है 56. 50 कहाँ है, ये रहा 50, इसके आगे 6 यूनिट्स आपको गिनने हैं, ये रहे यहाँ पे. नेक्स्ट 56 के बाद है 78 ऑन संडे एप्पल जूस. 78 यहाँ पे आ गया ये 70 और इसके आगे 8 लाइन्स. ओके ये रह गए. नेक्स्ट पाइनएप्पल 40 ऑन सैटरडे. या दिस इज 40. नेक्स्ट on Sundays 67. Where is 60? Here. Okay, 67 7 यूनिट्स आगे लेने हैं आपको. ये हो गए 5 6 7 यहाँ पे. दिस इज़ द आंसर. यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इसकी जगह आप पूरा शेड किया आपने, वो भी करेक्ट है. चॉइस इज़ योर्स. ओके, दिस इज़ द आंसर. The following numbers of votes were cast at 5 polling booths during the Gram Panchayat elections. Draw a joint bar graph for this data. First we will draw x and y axis. Now we will show number of booths on x axis. How many booths are there? 5 booths. Okay, so we will leave one cell and we will write here 1, and again we will leave one cell, then we will write 2 and so on. यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया, बूथ. सो ये लिखना इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पीपल.
this type of graph, bar graph, plain bar graph will show a male, number of males, and this type of the lined one shows the women. हमारे यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू कितनी थी 200. ओके, एंड द हाईएस्ट वन 850. मतलब एटलीस्ट हमें 900 तक प्लॉट करना है. हमने यहाँ पे क्या प्लॉट किया, नंबर ऑफ पीपल, तो ये लिखना ज़रूरी है, नंबर ऑफ पीपल. ओके, नाउ ऑन बूथ 1, ठीक है, नंबर ऑफ मैन 200. 200 कहाँ पे है, यहाँ पे. देन नंबर ऑफ वुमेन 700. वेयर इज 700, हियर. booth 2, on booth 2, 270 males. ओके, 200 यहाँ पे, यहाँ से 7 यूनिट हम आगे जाएंगे. ओके, 200, देन 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70. सो यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट 240 वुमेन. ये 200 आ गया, इससे 4 लाइन्स ऊपर, 1 2 3 4 यहाँ तक. नेक्स्ट, तो हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का भी रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के ऊपर दिखाया है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. The maximum and minimum temperatures of 5 Indian cities are given in degrees Celsius. Draw a joint bar graph for these data. First, we will draw x and y axis. Then we will take a scale that on y axis 1 centimeter is equal to 5 degree Celsius. On y axis we have plotted temperature, and on x axis we have plotted cities. Maximum temperature of Delhi is 35 degree. मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज़ 26. यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 25 है. 25 के आगे हम सिंगल लाइन नहीं गिने, यहाँ पे दो लाइन्स गिनेंगे हम. जैसे यहाँ पे 2 लाइन है, ये 26 आएगा, क्योंकि 25 और 30 में कितनी लाइन्स है, 10. ओके, तो हम लोग 2 छोटी लाइन बना के 26 होगा, फिर 29 और फिर 30, इस तरह से होगा. इसलिए ये 2 लाइन मिला के होगा ये. ओके, यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक सेल का डिफरेंस हमने 5 का लिया है. ओके, तो यहाँ पे 2 छोटी छोटी लाइन छोड़ के लेना है, तो 26 2 लाइन छोड़ के आएगा. मुंबई मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 32. अभी देखो 30 यहाँ पे है, 32 कैसे आएगा, यहाँ से 2 लाइन छोड़ोगे तो 31 आएगा, फिर 2 लाइन छोड़ोगे तो 32 आएगा यहाँ पे. ओके, मुंबई 32, 30 यहाँ पे 2 छोड़ोगे तो 31, उसके बाद 2 छोड़ोगे तो 32, ये हो गया 32. क्योंकि यहाँ पे 5 का डिफरेंस है 30 और 35 में, तो 2 लाइन छोड़ के 1 यूनिट होगा, मतलब 2 लाइन मिला के 1 यूनिट होगा. 31, फिर 32, फिर 2 छोड़ना है. मुंबई मिनिमम टेम्परेचर इज़ 25 ये है यहाँ पे. कोलकाता 37, 35 है यहाँ पे, इसके आगे 37 कब आएगा, 2 लाइन छोड़ के 36 और 2 लाइन छोड़ के, मतलब टोटल 4 लाइन छोड़ के हमारा आएगा 37. यहाँ पे स्केल कितने लिए हैं हमने, ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री का डिफरेंस है. ये मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए. ओके, कोलकाता का 30, मैक्सिमम कितना था 37, तो इसलिए 4 लाइन छोड़ के 37 आया. मिनिमम कितना है 26, ये 20, ये 25 के आगे सिर्फ 2 लाइन छोड़िए, आप 26 मिल जाएगा. नागपुर 41, 40 ये रहा, 40 के आगे 1, तो अभी 1 लाइन नहीं लेनी है, 2 लाइन लेनी है, क्योंकि यहाँ पे 40 और 45 में कितने यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है. ओके, तो 2 छोटी लाइन बना के 1 यूनिट बनेगा, तो यहाँ पे 41 ये आ जाएगा. मिनिमम इज़ 29.
अभी देखो 25 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है। ओके, 25 के बाद हम कितने लाइन छोड़ेंगे? 30 के नीचे भी अगर देखिए 25 के आगे 26, 27, 28, 29 यहाँ पे, मतलब 30 से 2 लाइन कम 29 आ जाएगा। देन कपूरथला मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 37। फिर देखते हैं यहाँ पे 35 है, ये 37 कहाँ पे आएगा? 2 लाइन छोड़ के 36, उसके बाद 37 यहाँ पे, मतलब 4 लाइन छोड़ के 35 के बाद 37। देन मिनिमम टेम्परेचर इज़ 26, यहाँ पे है 25 के आगे 2 लाइन छोड़ के 26। सो दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे हमने स्केल चेंज की। अब तक के ग्राफ में हमने 1 सेंटीमीटर मतलब 10 का डिफरेंस रखा था। ओके, यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से दिस इज़ द